Hello aspirants, I welcome you once again. So hopefully you have seen the analysis of the economic survey that we have uploaded or we have gone live recently. So I hope you could find out that how much that economic survey document is very important, because the 13th chapter that has been there in this economic survey, each and every chapter it is interlinked with each other. So for your mains examination and as well as your prelims, if you want to really succeed it, my recommendation is that you must study that economic survey very well. Along with that today, that is 1st of February 2025, recently launched the budget that the whole year we were waiting. So finally we got the budget, and today in this video we will be discussing about that, what is that, what are there in that budget. Also along with that we will be discussing how much a budget is important and how can you correlate the questions, what type of questions can be asked from budget. All right, that we will do. Now see, generally budget is presented by a speech. Now what does the government do? The Ministry of Finance, as soon as the speech is completed by the finance minister, that is our current finance minister Nirmala Sitharaman ji, as soon as she is giving the budget speech, she has been completed the budget speech. So you will get the whole speech in a PDF format which is released by the Ministry of Finance. All right, along with that the government is doing is a very sophisticated task for us, that many things that we have to read and find it out from the budget, which is also recommended. I won't say that not to read the budget speech, you must read, but if you just to take a glimpse, if you want to know what are there in the budget, you can just go through the highlights. Okay, so the government is also very much proactive in releasing such type of document where the readers find it very easy and interesting what are the recent developments in the country. So আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি সেই বস্তুবোৰ ডিসকাস কৰিম বাজেটত কি আছে. We will be discussing the key features of budget 25-26. Okay, so we will be referring the document only that is released by the Finance Ministry, Government of India, and this document is very much sophisticated, which is very easy to understand. Now in this first page that you can see, it is the journey of development. Development means what? We are here talking about the economic development. So in this year, the following year, that is our budget year 25-26, we are yet to enter. We will be entering that year, that fiscal year, on 1st of April 2025. That means the budget will be implemented on 1st April 2025, just like other past years. So there what we will see here, that the journey of economic development, the government is identifying the development as a journey in a particular vehicle. So for example, if we consider the economic development journey as a train, okay, the train, the engines of that particular train, the government has said that is agriculture, MSME, investment and export. Agriculture, MSME, that is your medium, small and micro enterprises, investment and export. Now by this, what does the government mean? Government mean that these are the focus area of the government for this particular year by the development of this sector such as agriculture, because we know these are the main component. Agriculture, industry, service sector, they are the main component of the economic growth model. So the government will focus on agriculture. So as the agriculture will grow, that means the economy will grow. MSME, medium, small and micro enterprise.
that means government will focus on the development of MSMEs. Now what are these MSMEs? If you do not know what are the MSMEs, we may discuss here. Look here, medium, small and micro enterprises. We identify these sectors by the criteria of investment and turnover. Now what do we mean by this investment and turnover? Turnover means sales. That means it is the maximum limit that has been assigned by the government or assigned by the particularly the Ministry of MSMEs, that a maximum limit of investment or the maximum limit of turnover, that is sales, will be the criteria of identifying a business as small, micro or medium. Say for example, if we see micro, the investment, the maximum investment of micro enterprise is 1 crore. Alright, and the maximum sales is rupees 5 crore. Tamane ki at a business jar maximum investment 1 crore rupees, not more than that, and jar sales is not more than 5 crore rupees, that business enterprise is to be termed as a micro enterprise. Now if we see small, the maximum limit is 10 crore. To be a small business, your maximum limit can be rupees 10 crore, from 1 crore to 10 crore, and the maximum turnover and the maximum sales will be rupees 50 crore, not more than that. And to identify as medium, the maximum turnover is 20 crore and the maximum sales is rupees 100 crore. Not more than that. These are the maximum limit. If a business having maximum 1 crore and turnover, that is sales 5 crore, identified as micro. If it is 10 crore maximum investment and 50 crore maximum sales, identified as small. And if maximum investment is 20 and maximum turnover is 100 crore, will be identified as medium enterprises. So this is the technical definition of MSMEs. Alright, so government will focus on the development of micro, small and medium enterprises. Next, what you see the government will focus on investment, both mobilization of domestic investment as well as the foreign investments. Alright, from this investment we can just say ki that government will focus on both domestic investment, mobilization of domestic investment and foreign investment. Alright, now why investment matters? Because for the economic growth and development, business or entrepreneurship matters. To fund or fuel a business, you require investments. Now if you just concentrating, think कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, you have concentrated in your home, you are not circulating it. आप घर में अपने तिजोरी में या फिर अपने सेविंग्स अकाउंट में आपने उसको जमा करके रख दिया है, but that will not fetch, that will not beget any return. Alright, the money will fetch you return when you invest it. What happens कि आपके पास जो सरप्लस मनी है, आप अगर उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दे तो कोई आपका पैसा लेके कोई बिजनेस करेगा, प्रोडक्शन करेगा, सर्विस डिलीवरी करेगा, तो व्हाट विल हैपन कि दे विल मेक मोर मनी एंड यू विल गेट अ रिटर्न. ओके, सो इफ in a country there is investment, there is savings mobilization, there is domestic investment as well as foreign investment, तब हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ का जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर, दे विल डेवलप. एक बिजनेस कब ग्रो नहीं कर पाता? जब बिजनेस को
ऑप्टिमम कैपिटल ना मिले। सबसे ज़्यादा पैसा अगर इकोनॉमी में है वो है हाउस होल्ड के पास। अगर हम सारे इंडिया का जितने भी फैमिलीज़ है, घर में जितने भी पैसे रखे हुए हैं इंक्लूडिंग द सेविंग्स अकाउंट, उन सबको अगर हम टोटल करें यू विल गेट कि सबसे ज़्यादा पैसा घर में है। ऑलराइट, और अगर वो घर में है मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा। ऑलराइट, बट व्हेन यू इन्वेस्ट इट, यू आर गिविंग टू अ entrepreneur or you are an entrepreneur, you have started a business, मतलब वो पैसा क्या करेगा, काम करना आरंभ करेगा। ऑलराइट, तो दैट यू विल सेल गुड्स, यू विल अर्न प्रॉफिट, यू विल डिलीवर सर्विसेज, यू विल अर्न प्रॉफिट, दैट विल लीड टू मोर एंड मोर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एज वेल एज द गवर्नमेंट विल फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। मीन्स व्हाट? एक्सपोर्ट इंक्रीज। क्या करना है? एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है। तो ऑब्वियसली अगर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है आपको आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। तो आप अगर देखिए एग्रीकल्चर और एमएसएमईज, तो एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, where more than 50% of the Indian population is directly or indirectly dependent on the agriculture। तो जब एग्रीकल्चर को एक इम्पेटस मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा कि गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में इंक्लूड हो रहा है, तो क्या होगा? एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो तो दैट विल बेनिफिट टू थिंग्स, कि if the productivity of agriculture increases तो क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? फर्स्ट मिलेगा कि हमारा जो इंपोर्ट है इन कॉन्टेक्स्ट टू द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, कि इंडिया में आज के डेट में हम एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं डिस्पाइट बीइंग एग्रीकल्चर रिच कंट्री। फॉर एग्जांपल पल्सेस, दाल, जो दाल घर में आप खाते हो, मैं खाता हूँ, वो दाल मैक्सिमम इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस एज वेल एज वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ पल्सेस। तो हम अगर इतना ज़्यादा दाल खाते हैं तो हम अपने ही लैंड में, अपने ही सॉइल में पल्सेस की खेती करेंगे। तो इस बजट में आपको वो भी देखने को मिलेगा कि कैसे गवर्नमेंट पल्सेस प्रोडक्शन के लिए वो भी इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट उन्होंने एक फंड आउटले रखा हुआ है। तो उससे क्या होगा? तो इंपोर्ट कम होगा, जैसे कि पल्सेस का इंपोर्ट कम होगा, ऑयल सीड्स का इंपोर्ट कम होगा। वी आर ऑल्सो अ वेरी लार्ज कंज्यूमर ऑफ ऑयल एज वेल। तो ऑयल भी इंपोर्टेड है, जैसे कि पाम ऑयल विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अदर रिफाइंड ऑयल्स। तो इंडिया का क्या है? इंडिया का पाम मिशन है, पाम ऑयल मिशन है। तो जैसे कि इंडिया अगर पाम ऑयल इंपोर्ट करता है तो क्यों ना हम खुद ही बहुत ज़्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस करें। तो हमारा क्या हुआ? इंपोर्ट कम हो गया। वी विल नॉट रिलाई ऑन इम्पोर्ट्स मोर। उसके साथ जब हम उतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे तो इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट है, तो वहाँ हम क्या कर पाएंगे? एक्सपोर्ट, जहाँ पर हमने अभी तक नहीं किया, जहाँ पर क्या है पोटेंशियल है, तो वहाँ हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो उससे क्या बनेगा? उससे इंडिया का ग्लोबली एक स्पेस बनेगा। जैसे कि इंडिया आज की डेट में इट इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया विल अचीव इट्स गोल टू बिकम इन अ टॉप 3 बहुत जल्द। ऑलराइट, सो दिस आर द इंजिन्स ऑफ जर्नी ऑफ डेवलपमेंट। नाउ यू सी, बहुत ब्यूटिफुली यहाँ पर दिया गया है कि अगर ये ट्रेन है, अगर ये एक ट्रेन है तो उस ट्रेन का जो फ्यूल है, ईंधन है, वो है रिफॉर्म्स, चेंजेस, रिस्ट्रक्चरिंग। क्यों चेंजेस चाहिए? बिकॉज बहुत से कुछ ऐसे चीज़ है जो इन सब सेक्टर को ग्रो करने में मतलब थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है।
जिसकी वजह से वो उसके पास जितना पोटेंशियल है वो उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड कि नो, वी हैव टू रिफॉर्म। जहाँ जहाँ ऑब्स्टिकल्स है, जितना ऑब्स्टिकल्स हम अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स है उनको जितना कम कर सके, वी विल लेसन इट और वी विल रिमूव इट। ऑलराइट, तो रिफॉर्म इज द फ्यूल, कि ईजी बनाया जाएगा, इसको चैनलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, गाइडिंग स्पिरिट, कि क्यों किया जाएगा ये, वाई वी आर थिंकिंग ऑफ सच बिग बिग रिफॉर्म्स। सो द गाइडिंग स्पिरिट इज इंक्लूसिविटी। यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज इंक्लूसिविटी। ओके, सी व्हेन यू सी द टर्म एंडिंग ITY, इसका मतलब है कि ये है एक स्टेट। स्टेट मतलब अभी इंडिया एज अ स्टेट, असम एक स्टेट है, वैसा नहीं। स्टेट मतलब करेंट सिचुएशन, वो है स्टेट। कि सिचुएशन को भी हम स्टेट बोलते हैं ना, कि आपका अभी क्या स्टेट है, आपके पढ़ाई का अभी क्या स्टेट है। तो इंक्लूसिविटी इज अ स्टेट। तो आपने शायद और एक वर्ड सुना होगा, इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस, तो इंक्लूसिवनेस क्या है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसका इंक्लूसिविटी का मतलब है कि इंडिया वांट टू बी एट अ स्टेट वेयर देयर इज इंक्लूसिवनेस। लिसन केयरफुली, थोड़ा सा टेक्निकल आपको लगेगा, पर यह क्या है कि इंक्लूसिविटी इज अ स्टेट वेयर इंडिया वांट्स टू बी, which is inspired by inclusiveness, okay, which is developed or which is reached by inclusive growth। ये जो तीनों टर्म है, इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिवनेस या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ, वो सिमिलर टर्म है। फाइन, तो मतलब क्या है? तो इंक्लूसिविटी एक कैसा स्टेट है कि इंक्लूसिव ग्रोथ अगर हम बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग अगर हम बाइफरकेट करें, दो भागों में हम लिखें, तो हम लिखेंगे कि एक लिखेंगे हम पार्टिसिपेशन, वन इज पार्टिसिपेशन, सेकंड वन इज फ्रूट्स। पार्टिसिपेशन और फ्रूट्स, ऑलराइट। मतलब पार्टिसिपेशन, किसका पार्टिसिपेशन? सबका पार्टिसिपेशन। फ्रूट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फ्रूट्स कौन एंजॉय करेगा? हर कोई, ऑल विल पार्टिसिपेट। इंडिया में जितने भी सेक्टर्स है, आई एम नॉट टेलिंग लोग, जितने भी सेक्शंस है, एवरीवन विल पार्टिसिपेट। जैसे कि मेन, वुमेन, ऑलराइट, प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड, privileged, underprivileged, all right, all members of different religious groups, different caste groups, all right, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा उस ग्रोथ प्रोसेस में। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसको फ्रूट्स नहीं मिलेगा, बिकॉज इंडिया हैज शिफ्टेड इट्स आइडियोलॉजी ऑफ फ्रीबीज टुवर्ड्स पार्टिसिपेटरी। कि आपको अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अगर फ्रूट्स एंजॉय करना है, देन यू हैव टू बी पार्टिसिपेटरी। आप काम करो और काम के बदले में आप अपना फ्रूट्स लो, ठीक है। कि एक टाइम था इंडिया में जहां लोग सब्सिडीज के लिए अपना दिमाग खराब करते थे कि गवर्नमेंट से सब्सिडीज चाहिए, बट अभी जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि वो सब्सिडी वाला कल्चर धीरे धीरे कम हो, जो कि हुआ है बहुत हद तक। वो सब्सिडीज बहुत कम हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम LPG सब्सिडी, फ्रॉम फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड मेनी मोर सब्सिडीज दैट वाज गिवन, लाइक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और लोन सबवेंशन स्कीम, लोन सब्सिडी स्कीम, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। एक टाइम था बहुत ज़्यादा वो था, तो फ्रीबी वाला कल्चर है वो, उस चीज़ को गवर्नमेंट कम करना चाहता है कि लोग बाग सब्सिडीज़ नहीं, लोग काम करेंगे। गवर्नमेंट विल फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर एंड मोर जॉब्स, ऑलराइट।
ताकि सब लोग पूरा का पूरा सेक्शन दे कैन एंजॉय द डेवलपमेंटल फ्रूट्स। तो वो जो जब स्टेट वो आ जाएगा, व्हेन इंडिया विल बी दैट स्टेट कि हाँ अभी सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं मोर और लेस अपरेंटली इक्वली, तब हम बोलेंगे दैट इंडिया अटेन्ड द स्टेट ऑफ इंक्लूसिविटी। ऑलराइट, होप दिस इज क्लियर। इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है? तो डेस्टिनेशन क्या है इंडिया का? डेस्टिनेशन है 2047। द डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया इज 2047, मतलब 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस। हंड्रेड years ऑफ इंडिपेंडेंस टू 2047, दैट इज द विकसित भारत। विकसित भारत, that means by 2027 India want to be in that state that it will declare itself कि India is now a developed nation, that is the target। तो उसके लिए ये पूरा का पूरा जो रास्ता है till 2047 that has to be planned, that has to be followed and ultimately reached। all right, now we will discuss the next thing। now see, very good line here, it is written, a country is not just its soil, a country is its people। okay, it is not about just soil, rather it is its people। now you can see here aspiration for Viksit Bharat, that India is aspiring for Viksit Bharat, developed nation by 2047। then what are the fuel that will aspire it? Like the first one is accelerate growth। growth means what? Here the technical meaning is accelerating the economic growth or to increase the GDP as much as possible। secure inclusive development, that just now I have talked about the inclusivity। inclusive development होना है, हर एक वर्ग का, हर एक श्रेणी का जो विकास होना है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि the participation of men is higher and higher and the female labor force participation is still at the lowest, वो होना नहीं है। enhance spending power of India's rising middle class, इंडिया में सबसे बड़ा जो क्लास है that is the middle class। ओके, और उस मिडिल क्लास का जो एक हैबिट है that is concentration of cash in their hands and doing no investment, कोई इन्वेस्टमेंट ना करना, स्पेशली मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना करना, दैट इज द हैबिट ऑफ द इंडियाज मिडिल क्लास पॉपुलेशन। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, या फिर हम क्या करते हैं, हम अपना जो सरप्लस अमाउंट है वो हम अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वी विल गो फॉर 1 year इन्वेस्टमेंट, we will go for 3 year investment। we do not think of investing it for 8 years, 10 years, 15 years like that, neither we think to invest our money in some business of our own। all right, and we also want to spend less, कि हम सेव करके, अच्छी बात है, सेव करना कोई बुरी बात नहीं है, we must save, but how will you do the saving? will you do short term saving or you will think a long term? okay, now the thing is कि यहाँ पर 2 types of spending you can say, one is the investment expenditure और investment spending। वो बढ़ाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि लोग जो मिडिल क्लास है, जो अपने हाथ में पैसा कंसेंट्रेट करके रखते हैं, उसको क्या करना है, उसको दे देना है मार्केट में फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। उसके साथ साथ लोगों को एनकरेज करना है टू इंक्रीज इट देयर स्पेंडिंग, कि जितना लोग स्पेंड करेंगे मार्केट में उतना ज़्यादा मार्केट में क्या क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा। राइट, तो जितना ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा इनकम। ऑलराइट, हमें पता है ना वो इन्फ्लेशनरी साइकिल कि जब यू कैन लुक हियर कि व्हेन इनकम is more, people demand more, people demand more, when people demand more, producers produce more, producer produce more, and
then again the production process will lead to more employment, more revenue generation, and hence more income. This will also lead to a higher rate of inflation. ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है एक इकोनॉमी में. Alright, so this is your inflationary cycle apparently. Alright, so वही करना है मिडिल क्लास को कि जितना ज़्यादा वो स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. तो नाउ क्वेश्चन इज, तो इनकम कैसे बढ़ेगा? लाइक रिसेंटली यू गॉट द न्यूज़ ऑफ द 8th पे कमीशन, जहाँ पर क्या सैलरी हाइक होने वाला है आफ्टर between 1 to 2 years. Salary will be hiked, a very steep hike will be given to the employees, to the government employees. Okay, so तब क्या होगा, लोगों का इनकम जब बढ़ेगा तो गवर्नमेंट क्यों हाइक दे रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्यों हाइक ज़्यादा मिलेगा? क्यों? ताकि वो ज़्यादा खर्चा करे इंडियन इकोनॉमी में, राइट? अगर किसी को मान लो कि 20,000 मिल रहा है तो उसका सैलरी बढ़ के जब 35-38,000 होगा तो डेफिनेटली ही विल स्पेंड मोर. एज ही विल स्पेंड मोर, इकोनॉमिक ग्रोथ विल हैपन. ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है, इंटरलिंक करना है कि कैसे स्पेंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ करता है. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. नेक्स्ट, इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, कि हमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है ऑन द प्राइवेट सेक्टर. वी मस्ट इन्वेस्ट इन द प्राइवेट सेक्टर. आज के डेट में एक टाइम था जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ को जो इंजन था, जो पुल कर रहा था, दैट वाज द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट. बट 1991 को हमें देखने को क्या मिला कि गवर्नमेंट, द पब्लिक सेक्टर फेल्ड. इकोनॉमिक ग्रोथ जो करना था, जो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था बाय 1990s, वो नहीं हो पाया. पर जब 1991 को एलपीजी रिफॉर्म हुआ, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द एलपीजी रिफॉर्म, तो जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ उसके बाद हमें इंडिया में एक ड्रास्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है. क्योंकि यहाँ पर जो पी वाला फैक्टर है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, दैट वाज अ बिगेस्ट चेंज. कि जहाँ पर एक टाइम था जहाँ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करता था बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, उन्होंने बहुत पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट्स दिखाए. दे हैव अचीव्ड मल्टीपल माइलस्टोन्स. तो आज की वजह से इतना जो सोफिस्टिकेटेड इंडिया बना है पहले से, तो वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से बना है. तो इसीलिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बूस्ट द प्राइवेट सेक्टर एज वेल बाय बिल्डिंग इंडिविजुअल confidence in India and uplift household sentiment. ओके, तो uplift household sentiment मतलब कि घरेलू सेंटिमेंट, सेविंग्स को ध्यान रखते हुए कि जो पैसा जो फ्लो होगा हाउस होल्ड से प्राइवेट सेक्टर में वो ठीक जगह पर जाए, कॉन्फिडेंस डेवलप हो. दैट इज अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट. तो यहाँ पर आपको कुछ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. वी विल जस्ट डिस्कस ब्रीफली ऑन दैट कि डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी. अगर आप लास्ट बजट देखें, लास्ट ईयर का अगर बजट देखें, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर कहा था, इट टॉक्ड अबाउट 4 न्यू कास्ट इन इंडिया. गवर्नमेंट टॉक्ड अबाउट 4 न्यू कास्ट. और इसका क्वेश्चन लास्ट एपीएससी प्रीलिम्स में आया था. ऑलराइट, कि गवर्नमेंट जो 4 नए कास्ट के बारे में बोला तो वो क्या है. ऐसे भी नॉर्मली अगर हम वर्ण बोलते हैं, वर्ण जो समटाइम्स विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कास्ट, बट वो वर्ण है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. बट गवर्नमेंट हैज सेड कि इंडिया में अभी 4 नए कास्ट है जिनका हमें एम्पावरमेंट करना है. तो वो कौन है? वो है पोर, मतलब गरीब. देन यूथ, जो कि है युवा. देन दे आर द फार्मर्स, अन्नदाता, एंड वुमेन, नारी. ओके,
So if you know, or if you remember, if you have attempted last year APSC prelims, then you will know that budget से कैसे prelims में question आते हैं. Alright, और जिन्होंने मेंस दिया, यू पीपल ऑल्सो नो कि कैसे इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज बजट से क्वेश्चंस भी आते हैं, और आप लोगों ने क्या किया, वो सर्वे से कंटेंट आपके एग्जामिनेशंस में आपने लिखे हैं, बजट से भी आपने कंटेंट ऑब्वियसली लिखा है. ऑलराइट, सो द डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन दिस फोरकास्ट. तो गवर्नमेंट एक्चुअली इन चारों के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, जैसे कि स्परिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी. ठीक है, ये तो पढ़ के समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ और जो रूरल प्रोस्पेरिटी है उसको कैसे एक बूस्ट दिया जाए, एक लीप दिया जाए, जैसे बाय गिविंग सर्टेन स्कीम्स अंडर दिस पर्टिकुलर बजट. जैसे नंबर 1, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स. व्हाट इज दिस हाई यील्डिंग सीड, कि ये एक हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड है जिसका जर्मिनेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, फेलियर रेट बहुत कम. ट्रेडिशनल सीड्स अगर लगाए तो उसका फेलियर रेट ज़्यादा होता है, मतलब आप सीड को बोए हो, बीज को बोए हो, उससे जर्मिनेट होके प्लांट पौधा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, दैट इज़ वेरी मच अनसर्टेन. पर अगर HYV सीड्स यूज़ किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा, उसका जो सर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा है कि जर्मिनेशन होगा, और उससे जो फसल बनेगा वो ज़्यादा फसल बनेगा. ट्रेडिशनल सीड्स से क्या देखा गया कि हाँ फसल तो अच्छा है पर उसका जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, और उसको ज़्यादा टेक केयर करना होता है, खर्च ज़्यादा होता है. HYV में खर्च कम होगा, इनपुट कॉस्ट. HYV सीड्स के दाम ऑब्वियसली ज़्यादा है पर जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा कम है. एनहेंस क्रेडिट थ्रू KCC. KCC का मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, विच इज़ अ वेरी ओल्ड स्कीम, कि किसान द फार्मर्स दे आर गिवन अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव बैंक्स. ऑलराइट, तो उस क्रेडिट कार्ड से यूज़ करके फार्मर्स अपने एग्रीकल्चरल इनपुट्स खरीदते हैं, तो उसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू फार्मर्स को अभी क्या दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाएंगे. किनको, टू 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स विथ एनहेंस्ड लोन ऑफ 5 लाख. 5 लाख तक उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम. ठीक है, तो 100 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया जाएगा कि जहां पर 1.7 करोड़ फार्मर्स को पर्टिकुलरली हेल्प किया जाएगा, जस्ट लाइक द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. तो एग्री, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, वैसे ही एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, वेयर 100 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी आइडेंटिफाइड. दीज आर अगेन प्रीफैक्ट्स कि इन सब चार्ट से क्या आएगा, देयर विल बी क्वेश्चंस इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी. यू नो इंडिया इज द लैंड वेयर द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन इज प्रोड्यूस्ड. तो कॉटन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एक फंड आउटले किया गया है. तो उसमें 5 ईयर, इट इज़ अ 5 ईयर मिशन टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग. मखाना बोर्ड इन बिहार. तो आज के डेट में शायद आप लोग भी उसके पार्ट हो, कि आज के डेट में हम देखेंगे कि रिटेल शॉप्स में, शॉपिंग मॉल में, सुपरमार्केट्स में यू विल गेट चिप्स के पैकेट के साथ साथ आपको और एक पैकेट मिलेगा जो है क्या, मखाना. व्हाट इज दिस मखाना? एक्चुअली इसको कहा जाता है द लोटस सीड से वो बनता है, उससे भी होता है, पर जनरली वो वाटर लिली का जो सीड है, वाटर लिली के सीड से वो बनता है. लोटस सीड्स बहुत वो बोलते हैं पर वो लोटस सीड्स नहीं है, जनरली वो वाटर लिली के सीड से बनते हैं. तो दैट इज़ मखाना. कुछ कुछ लोगों को वो खा के अच्छा लगता है, कुछ कुछ को नहीं लगता है. लाइक मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, उतना ज़्यादा कोई बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं है. फ्लेवर्स वगैरह डाल के आजकल मिलता है शॉप्स में. अगर आप लोग टेस्ट नहीं किए हो, डू टेस्ट इट, एक दिन अच्छा भी लग सकता है आप लोगों को. तो उसका प्रोडक्शन बिहार में बहुत ज़्यादा है. तो गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि एक मखाना बोर्ड इन बिहार खोला जाएगा. किसकी वजह से? क्योंकि वो तो स्कैटर्ड है आज के डेट में. अगर कोई रेगुलेशंस नहीं, फैसिलिटेटर. रेगुलेशन बोलना गलत होगा यहाँ पर. रेगुलेशन मतलब बांध के रखना, फैसिलिटेटर मतलब कि बूस्ट करवाना.
तो एक फैसिलिटेटर चाहिए जो कि मखाना प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में उन एंटरप्रेन्योर या फिर प्रोड्यूसर्स को मदद करे। ऑलराइट, दिस मखाना इज अगेन इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ आपको यहां देखने को मिलेगा आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस। आज के वीडियो के आरंभ में मैंने बोला है अबाउट द पल्सेस। ठीक है, दाल में हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें इंपोर्ट्स नहीं करना है। देन इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। इंडिया पोस्ट की हम अगर इंडिया पोस्ट बोले तो हमें वही पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस, लाल कलर का लेटर बॉक्स वही मिलेगा, वही मतलब विजुअलाइज करेंगे। बट इंडिया पोस्ट आज के डेट में सिर्फ वही लाल डब्बा या फिर वो चिट्ठी नहीं है। आज के डेट में कितना हम चिट्ठी यूज करते हैं। नो, नाउ द इंडिया पोस्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड। इट इज प्रोवाइडिंग द पीपल ऑफ इंडिया विथ फिनेंशियल बेनिफिट्स, विथ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। दे आर डूइंग बैंकिंग बिजनेस लाइक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आज के डेट में आप इंडिया पोस्ट में यू कैन मेक द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आरडी, एफडी और ढेर सारे फिनेंशियल डिपॉजिट्स आप कर सकते हो। ऑलराइट, दैट मीन्स व्हाट, ये एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन चुका है आज के डेट में, जो कि पहले एक ट्रेडिशनली सिर्फ लॉजिस्टिक्स का काम करता था। तो वहां पर वो क्या करेगा, रूरल इकोनॉमी में फोकस करेगा, लाइक डीबीटी, कैश आउट, ईएमआई पिकअप, कि जो आज के डेट में वो प्रोवाइड नहीं करता है वो करेगा। डीबीटी, लोगों के अकाउंट में वो डीबीटी, अगर किसी फार्मर्स को, रूरल है ना, फार्मर्स को अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलना है तो वो इंडिया पोस्ट का जो बैंक है वो उसके वहाँ उस अकाउंट में उसको मिलेगा। देन ईएमआई पिकअप, अगर किसी चीज़ को अगर खरीदना है ईएमआई में, दैट इंडिया पोस्ट विल सपोर्ट द फार्मर। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रोवाइड, असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज, क्रेडिट सर्विसेज, वो सब दिया जाएगा टू द रूरल इकोनॉमी, स्पेशली माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, वो तो इंश्योरेंस, क्रेडिट सर्विस तो आज भी दिया जाता है, पर रूरल इकोनॉमी को इस बजट से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो जैसे कि एमएसएमई, आपने देखा था द सेकंड इंजन एमएसएमई, तो एमएसएमई के लिए भी कुछ स्कीम है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइज, जैसे कि किसान के लिए केसीसी है, तो अभी माइक्रो एंटरप्राइज के लिए भी क्रेडिट कार्ड का सिस्टम किया जाएगा कि वो आपके बिजनेस के लिए, माइक्रो बिजनेस के लिए अगर लोन चाहिए तो गवर्नमेंट आपको अप टू सर्टेन अमाउंट, कितना, विथ अ 5 लाख लिमिट, क्रेडिट कार्ड का विथ अप टू 5 लाख लिमिट माइक्रो एंटरप्राइज को लोन दिया जाएगा, विच आर रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। यू कैन सी उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल क्या है, ये गवर्नमेंट का एक डिजिटल पोर्टल है। डिजिटल पोर्टल है जहां एक बिजनेस एंटरप्राइज अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकता है। एवरीथिंग इट इज डिजिटल, उद्यम पोर्टल। और उसका एक साथी भी है जो कि गाइड करता है, दैट इज उद्यमी मित्र। उसके साथ उद्यम पोर्टल में अगर कोई माइक्रो एंटरप्राइज रजिस्टर करता है तो उसको क्रेडिट कार्ड बेनिफिट भी मिलेगा। इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड विल बी इशूड। मतलब ये आने वाले साल 25-26 को 10 लाख कार्ड इशू किया जाएगा। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है, सपोज आप कोई बिजनेस नहीं करते हो, ऐसे पढ़ाई करते हो, बट यू वांट टू डू बिजनेस, यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू विल बी टर्म्ड एज अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर। तो उनके लिए क्या है, फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर इंक्लूडिंग वुमेन, SC and ST, a new scheme to be launched to provide term loans up to 2 crore during the next 5 year। मतलब सुनिए, आने वाले 5 साल में 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि वुमेन इंक्लूडेड है, SC और STs भी इंक्लूडेड है, उनके लिए गवर्नमेंट 5 लाख तक का मदद देगा इन टर्म्स ऑफ लोन। ऑलराइट, मे बी वो बहुत ही कम इंटरेस्ट में होगा या फिर वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट से रिपे किया जाएगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट येट मेंशन्ड हियर। मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो मैन्युफैक्चरिंग मिशन, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में हमें क्या देखने को मिला था कि मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। डर लगने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा डिक्लाइन आया है ड्यू टू लेस एक्सटर्नल डिमांड। तो अभी क्या करना है, इस साल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है।
नाउ सपोज आपके दिमाग में बिजनेस आइडिया है, यू वांट टू डू बिजनेस, बट क्या हुआ, बहुत कुछ एरियाज में आपको रेस्ट्रिक्शंस मिलने लगे कि आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इजी नहीं है. मे बी इट इज़ इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू गेट अ पर्टिकुलर परमिशन, क्लियरेंस, वो कुछ लेना होगा. तो मतलब यू आर हैविंग अ लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, इन इंडिया. तो गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई कि कहाँ कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शंस को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा या फिर लिफ्ट किया जाएगा. ऑलराइट, तो उससे क्या मिलेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होगा और गवर्नमेंट विल ट्राई टू मेक द कॉस्ट लोअर. जितना कम पैसे में एक बिजनेस स्टार्ट हो सके, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सके, गवर्नमेंट उसमें फोकस करेगा. ऑलराइट, तो उससे क्या होगा, जॉब्स विल बी क्रिएटेड. बिकॉज अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो जाओ तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को संभालने के लिए आपको क्या चाहिए, फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए. तो यू विल बी द क्रिएटर ऑफ जॉब्स. अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को भी टारगेट किया जाएगा. मेजर्स ऑफ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर, लेदर सेक्टर्स, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. जैसे कि और एक देखिए टॉय सेक्टर, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में भी हमने देखा था दैट इट विल फोकस टॉय सेक्टर, मतलब खिलौना. जो एक टाइम था, अगर आप कोई भी खिलौना अगर खरीदते हो मार्केट से, उसके पीछे या फिर नीचे क्या लिखा होगा, मेड इन चाइना. हार्डली आपको ऐसा टॉयज मिला होगा मार्केट में जो कि मेड इन इंडिया लिखा जाता है, लिखा हुआ है. आज के डेट में मिल सकता है, आज के डेट में ऐसा नहीं कि मार्केट में नहीं है, पर उसको बूस्ट दिया जाएगा कि जहां इंडियन मार्केट चाइनीज टॉयज के लिए जितना ज़्यादा क्या है, एक नीश बना लिया था इंडियन मार्केट को कि बच्चा अगर कोई खिलौना खरीद रहा है तो वो क्या है, टॉय का ही है. वो अभी इंडिया उसमें क्या करेगा, एक पुश देगा कि इंडिया अपना टॉय सेक्टर डेवलप करना चाहता है. सिमिलरली फुटवेयर और लेदर सेक्टर और फूड प्रोसेसिंग में. ठीक है, इतना नंबर्स में आज हम नहीं जाते, तो वी विल सी. चलो यहां पर रिवीजन है, सी रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमईज. तो यहां पर थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि हमने वो एक चार्ट मैंने जो लिख के बताया था वो तो एक करेंटली है. जो चेंज आएगा नेक्स्ट ईयर से, अभी नहीं, अप्रैल 1 से जो चेंज आएगा, एमएसएमईज के डेफिनेशंस में थोड़े से चेंजेस आए हैं. देखिए कि क्या है, करंट और रिवाइज्ड. जो करंट माइक्रो सेक्टर का अगर एंटरप्राइज देखें, मैंने क्या बोला था कि 1 करोड़ तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा. उसको रिवीजन करके 1 अप्रैल से क्या बनाया जाएगा, 2.5 करोड़ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, 2.5. टर्नओवर सेल्स जो करेंटली 5 करोड़ मैंने आपको बताया था, वो अभी होगा अप्रैल 1 से 10 करोड़. मतलब 2.5 इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम, 10 करोड़ टर्नओवर मैक्सिमम. स्मॉल एंटरप्राइज जो कि 10 करोड़ था, वो अभी बनेगा 25 करोड़, टर्नओवर 50 से होगा 100. मीडियम 50 से होगा 125, टर्नओवर होगा 250 से 500. मतलब जो एरिना है उसको इंक्रीज कर दिया गया, जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया. ठीक है, क्यों, तो क्या होगा, क्या बेनिफिट्स मिलेगा कि गवर्नमेंट, जो हमने क्लास के आरंभ में देखा कि गवर्नमेंट जो एमएसएमईज के लिए जो बेनिफिट्स लाएंगे, तो उसके वजह से व्हाट वी विल गेट, एमएसएमई सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा. राइट, तो उस एमएसएमई सेक्टर को अगर बूस्ट मिले तो क्यों ना हम एमएसएमईज का जो डेफिनेशन है उसको इंक्रीज कर दे. वाई डोंट वी इंक्रीज द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, क्यों ना हम उस क्राइटेरिया को इंक्रीज कर देंगे तो ज़्यादा बिजनेस अभी एमएसएमई के अंदर आ जाएगा, तो वो स्कीम उनके लिए भी लागू होगा. ऑलराइट, तो वैसे आपको इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन जैसे कि स्कीम्स है, मैंने आपको पहले भी बोला था दैट आई विल ब्रिंग ईच
स्कीम इन डिफरेंट वीडियोस, एक एक स्कीम एक एक वीडियोस में हम करेंगे। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, एक्सपांशन ऑफ कैपेसिटी इन IIT, सीट्स बढ़ेगा। इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर दोज पीपल who are aspiring for IITs, expansion of capacity in IIT, daycare cancer center in all district hospitals, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, national centers of excellence for skilling, Atal tinkering labs. What is this Atal tinkering lab? कि these are the labs for children in schools, colleges, जहां पर innovations कैसे किया जाए, entrepreneurship कैसे किया जाए, उन सब का क्या होता है वहाँ सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, काइंड ऑफ इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेशन जो स्कूल्स कॉलेजेस में दिया जाता है, बच्चे सीखते हैं। वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से वो अलग है कि बच्चे अभी इनोवेशन सीखेंगे, बिजनेस कैसे करें वो सीखेंगे। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर ये सक्सेसफुली हो इंडिया में तो शायद इंडिया में बहुत मतलब ये गरीबी का, हंगर का जो भी प्रॉब्लम जितना भी है वो सब खत्म हो जाएगा एक दिन। ऑलराइट, सो दीज आर देयर आर वेरियस स्कीम। ओके, आप लोग उस डॉक्यूमेंट को देखिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई विल से कि इस वीडियो के बाद आप लोग उस डॉक्यूमेंट को क्या करो, पढ़ो, पूरा अच्छे से पढ़ो। फिर जो बजट है पूरा स्पीच को आप आपके प्रिपरेशन में धीरे धीरे पढ़ो, या फिर 1 वीक ले लो, वहाँ पर आप ख़त्म कर दो पूरा बजट स्पीच और इकोनॉमिक सर्वे, हाईलाइट्स एवरीथिंग। अगर नोट बनाना है बनाओ, अगर नहीं बनाना है इसका प्रिंट आउट लेके आप अपने पास रख दो। ऑलराइट, तो ढेर सारा देयर इज़ वेरी स्कीम, तो बहुत ज़्यादा आपको नंबर्स देखने को मिलेगा, कितना करोड़ कितना परसेंट, उतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर जो भी स्कीम्स, नए स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं इस बजट में, प्लीज़ डू वॉच इट। ऑलराइट, तो नए नए फंड्स क्रिएट किया गया है। इस बार बिहार के लिए बहुत बहुत बड़ा एक मतलब प्लान किया गया है। मखाना बोलिए, फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर कि फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नए एयरपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोशी कैनल, ERM प्रोजेक्ट्स। तो ये सब बिहार में अभी होगा। जो जिसको अभी तक माना जाता था इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड स्टेट, गवर्नमेंट इज नाउ इन दिस बजट, इट इज़ वेरी क्लियर दैट गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग ऑन बिहार एज वेल, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। ऑलराइट, सो असम के लिए मैं बोल दूं कि यू माइट बी वेटिंग कि असम के लिए क्या है। असम के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट इन नामरूप एंड सम अंडरलाइंग डॉर्मेंट यूरिया प्लांट जो कि बंद है उसको रिवाइव किया जाएगा और इंडिया में नया यूरिया प्लांट सेटअप किया जाएगा। यूरिया इज द मोस्ट डिमांडेड फर्टिलाइजर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बोथ इन इंडिया एंड आउटसाइड। तो अभी असम विल बी द हब ऑफ यूरिया। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। बजट्स के और भी वीडियो आएंगे, तो प्लीज़ stay tuned and best of luck for your preparation. We will meet in a separate video. Thank you so much.